Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. Wishing you all a very happy Navratri और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये 3 beautiful Navratri makeup looks. The first makeup look is very basic and the another one is classic Indian and the third one is a bit bold. So without any further ado, let's just get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द बेस और बेस करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन किया है एंड आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस एंड अप्लाइड आइस ऑन इट टू श्रिंक माई पोर्स. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ जीवा का ये रोज़ वाटर. यू कैन यूज़ एनी टोनर दैट यू हैव. After that, I'm going to use this Mamaearth Bye Bye Blemish Cream to moisturize my skin. After this, I'm going to use this foundation. This is the Maybelline Fit Me foundation in the shade 128 and I'm going to dot it all over my face and I'm going to blend it very nicely. So the base makeup is going to be pretty much the same for each and every look. जो हमारा फाउंडेशन है, कंसीलर है, कंटूरिंग है, पाउडरिंग है, ब्लश है, दैट इज़ गोइंग टू बी सेम फॉर ईच लुक. लेकिन हमारा लिपस्टिक एंड आई मेकअप इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. दिस इज़ माई क्राइलॉन सुप्रा बेस पैलेट और इसमें से मैं आइवरी शेड यूज़ करने वाली हूँ एज अ कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई अंडर आई एरिया, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, ऑन द साइड्स ऑफ माई माउथ जहाँ थोड़ी सी पिगमेंटेशन है एंड ऑन द mid part of my forehead basically. अब मैं ये darker shade use कर रही हूँ to contour my face. This step is very important to shape up your face. It gives a beautiful definition to the shape of your face. अगर आपकी already defined cheekbones है और sharp jawline है then you might not really require this as much. But if your face is a bit chubby but you want to make it a bit more slimmer, then what you can do is you can do contouring. But the art of contouring is really something you want to practice very well because contouring is something जो आपकी look को बहुत ज़्यादा enhance कर देता है. But अगर आप उसे अच्छे से नहीं करेंगे then you might end up looking horrible. But practice is the key. So here I'm using this Blue Heaven Sapphire लूज़ मेकअप पाउडर और मैं बहुत लाइट हैंड से इसे ऑल ओवर द फेस इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. आई एम यूजिंग वेरी लिटिल पाउडर. आई डोंट यूज़ टू मच पाउडर बेसिकली. सो आफ्टर डूइंग क्रीम कॉन्टोरिंग अब मैं पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ. आई एम टेकिंग दिस लाइट ब्राउन शेड एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टोर इट ओवर the place where I did my cream contouring. And blending is the key, you guys. You have to blend it really well. You have to use different strokes, different brushes and figure out which technique and which formula works for you really well. कुछ लोग cream contouring prefer करते हैं, कुछ powder contouring prefer करते हैं. Now let's move on to eyebrows. I'm using this teeny tiny brush and I'm going to use it for my brows. मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड लिया और उसे मिक्स एंड मैच करके यूज़ किया है अपने ब्राउज़ पे. माई ब्राउज़ आर क्वाइट डार्क ऑलरेडी सो आई एम यूजिंग अ डार्क शेड बट मेक श्योर कि आप जो भी कलर यूज़ करें दैट मैचेस योर ब्राउ हेयर. Filling your eyebrows makes such a difference even though you have fuller brows. Next, I'll be using this beautiful Huda Beauty Mercury Retrograde palette. It's not real basically, it's a first copy, but it works beautifully. I've taken this beautiful corally shade on my cheeks and look how beautiful it looks. Blush gives such a big difference on your face. It makes your face look much more healthier. Make sure to connect your blush or your contour with your hairline so that it does not look patchy. Next, I'm using the CG Girl palette and I'm using this beautiful icy shade. It's a shimmery shade for highlighting the high points of my face like so. And I'm not going too overboard with it. I want a natural, subtle glow. So with this, our base makeup is done.
तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मेकअप लुक की तरफ. So first, I'm going to apply this Nykaa Mini Matte lipstick in the shade 50M, and it's such a beautiful nude shade. I've already finished it, and this is how it looks. This look is going to be a bit basic yet bold kind of a makeup look. So for eyeshadow, I'm using the Swiss Beauty 12 Ultra eyeshadow palette. सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड लिया है और एक क्रीज लाइन क्रिएट की है. अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लाइटर शेड लेके उसे और भी अच्छे से ब्लेंड किया है. ब्लेंडिंग इज़ द की. शिमरी शेड लेके मैंने अपने लिड पर अप्लाई कर दिया है, समथिंग लाइक दिस. नाउ टेकिंग द सेम ब्राउन शेड, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई लोअर लैश लाइन. फॉर लाइनर मैं ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, ब्लैक आई शेडो, और मैं इसी को यूज़ करूँगी एज माई आई लाइनर. आई एम नॉट गोइंग टू सेपरेटली अप्लाई एनी आई लाइनर. दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ स्मज्ड आई लाइनर मेकअप लुक, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड में मैं हर एक चीज़ को इंटेंसिफाई कर रही हूँ. अपने शिमर्स को मैंने इंटेंसिफाई किया, उसके बाद जो मेरा आई लाइनर है उसको भी मैंने थोड़ा इंटेंसिफाई कर दिया, एंड एट द एंड आई एम इंटेंसिफाइंग द क्रीज लाइन. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आई लैश कर्लर और अच्छे से अपने लैशेज़ को कर्ल करूँगी मैं. इफ़ यू आर अ बिगनर देन बी वेरी केयरफुल while डूइंग दिस स्टेप. I felt like the lines are a bit harsh, so I'm blending it again. Now I'll use this Lotus Max Lash Volumizing Mascara, and that's about it. And this is how the complete makeup look looks. To add an Indian tadka, you can also apply a small black bindi and it will look amazing. Now let's move on to the next look, and I'm using the same Huda Beauty palette and I'm using this orangey shade on my crease line, और मैं इसे इस तरीके से अच्छे से blend कर रही हूँ. This is more of a transition shade and I'm going to deepen my crease line. I'm using this dark pink shade. उसके बाद ठीक अपनी crease line पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये dark purple shade, and I'm going to apply it very precisely on my crease line only. मैं इस dark shade को बिल्कुल भी ऊपर नहीं ले जाने वाली. ऊपर सिर्फ lighter shades हैं जो कि blending में आपको दिख रहे हैं, और जो crease line में है वो सिर्फ dark shade है. इससे जो है क्रीज लाइन बहुत प्रोमिनेंटली शो होगी एंड जो पफिनेस है उस एरिया की वो ख़त्म हो जाएगी. एंड आई एम अप्लाइंग दिस फाउंडेशन ऑन माई लिड. यू डोंट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू कट योर क्रीज और समथिंग लाइक दैट इन दिस पर्टिकुलर लुक. उसके बाद आपको अप्लाई करना है कोई भी शिमरी शेड. आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल रोज़ गोल्डी शिमरी शेड एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस ब्राउन शेड और मैं अपनी क्रीज लाइन को और ज़्यादा डार्कन करने वाली हूँ ताकि मेरी क्रीज लाइन जो है वो अच्छे से विजिबल हो. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस पर्पल आई शेडो एंड आई एम यूजिंग इट ऑन माई लोअर लैश लाइन. Next I'm using this Krylon cake liner and I'm going to apply a beautiful wing eyeliner. As this is a classic Indian look, so I'm going to add a little bindi and a beautiful red lipstick. That is the NY Bay liquid lipstick in the shade Miranda's First Kiss, and this is how beautiful this looks. Last but definitely not the least, I'm taking this Huda Beauty eyeshadow palette and I'm using this
ब्यूटीफुल मिंट शेड। इस मिंट शेड को मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग इट एज अ ट्रांजिशन शेड एंड वेरी केयरफुली आई एम पैकिंग इट ऑन माई लिड ताकि पिगमेंटेशन लूज़ ना हो। उसके बाद आपको यूज़ करना है कोई भी बेस और आपको अपनी क्रीज के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। यू डोंट नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शेप, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी लिड एरिया को कवर करना है। एंड आई एम टेकिंग दिस CG गर्ल आई शेडो पैलेट और मैं ये डार्क ब्लू शेड अपने आउटर एज ऑफ द आई पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू डिपॉजिट द कलर नाइसली। Then I'm taking this beautiful shimmery white shade and I'm applying it on the inner V of my eye. Now here I would like to stop and take a moment to explain you something. As you can see, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर जो आई है वो ज़्यादा डिफाइंड लग रही है और जो राइट साइड है जहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ वहाँ पर आई इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं लग रही है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कट क्रीज करती हूँ, हाफ कट क्रीज करती हूँ, तो एंड में मैं डार्क शेड अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करना ऑलवेज़ आई प्रेफर, बिकॉज जब आप अपनी क्रीज लाइन पे डार्क शेड अप्लाई करते हैं, स्पेशली अगर आपकी पफ़ी आई है, आपकी इतनी ज़्यादा डिफाइंड आई नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपकी पफिनेस जो है वो आपके कट क्रीज को अच्छे से शो नहीं होने देती है। इसीलिए आई अप्लाई अ डार्क शेड ऑन माई क्रीज लाइन ताकि जो पफ़ी एरिया है वहाँ पर एक क्रीज लाइन का, प्रोमिनेंट क्रीज लाइन का इफ़ेक्ट शो हो, इल्यूजन शो हो बेसिकली। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ प्रेफर टू लाइन द आउटर लाइनिंग ऑफ माई क्रीज विद अ डार्कर शेड कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लैक शेड एंड आई एम गोइंग टू लाइन माई क्रीज लाइक दिस एंड यू कैन सी कि इससे क्रीज कितनी प्रोमिनेंट हो जाती है। नेक्स्ट आई टेक दिस शेड एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट to define the shape of my eye and use it on the lower lash line as well. Here I'm using a dark blue shade and a shimmery shade, the same shimmery shade on the inner part of the lower lash line and on the inner corners as well. आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आया देन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रिक फॉर अस गर्ल्स हैविंग पफी आईज, सो आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दैट। नाउ आई हैव अप्लाइड माई आई लाइनर और मैं मिक्स क्लियर की वाइट आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड वाइट आई पेंसिल मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस यू गाइज। इट मेक्स योर आई लुक मच मोर बिगर एंड ब्राइटर. Again, I'll be using this eyelash curler and my mascara. Next, I'm using this beautiful orangey nude lipstick from NY Bay. And it's a creamy lipstick, so I want to make it a bit more matte. I'm topping it off with my nude orange eyeshadow. And on the center of my lip, I'm using this light shade. And this is how it looks. आई होप कि तीनों लुक्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड प्लीज़ 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 राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड विच यू फील विल सूट यू द बेस्ट. Again, I wish you a very very happy Navratri guys and I hope this video was helpful for you. See you in the next video. Till then, bye bye.